Morning, students. We have started the chapter, the Mughal Empire, chapter 4 of history. So before we are going to move further, first I am going to just recapitulate what we have done in two previous days. जो हमने किया है, that I am going to ask. And side by side, you can write the answers in the chat box. You can raise hand. ठीक है? So I am going to ask the question. So it's just a recapitulation of the topic what we have done. Okay, now question number 1. Who established the Mughal Empire in India? Who established the Mughal Empire in India? Do not unmute yourself, just raise your hand. Jai Vidya. Ma'am, Babur. Babur, very good. Okay. So who succeeded Babur? After Babur, who was the next Mughal emperor? Ankit. Humayun. Humayun. Very good. So, when was the first battle of Panipat fought? When was the first battle of Panipat fought? Trisha. 1526. 1526. Very good. Now, between whom? Who is going to tell me? Okay, Tejas. Ma'am, between Ibrahim Lodi and Babur. Ibrahim Lodi and Babur. Okay, very good. Now my next question is, when we talk about the great Mughals, which one was the last Mughal emperor? Which one was the last Mughal emperor? Anurit. Aurangzeb. औरंगजेब. बेटा औरंगजेब मेन है, मैंने अर्ली मुगल्स के बारे में बोला है. मुगल्स जो रहे हैं काफी लास्ट टाइम तक रहे हैं. बहादुर शाह जो जफर थे, दैट ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर. ठीक है, बिकॉज इन 7th क्लास हम सिर्फ अर्ली मुगल्स की बात कर रहे हैं, हम 6th डेट मुगल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो चैप्टर में है दैट वाज औरंगजेब. वेरी गुड. नाउ which tradition of succession was followed by Mughals? Which tradition of succession was followed by Mughals? Angel Sahdev. Copper-Senric. Very good. So, who is going to define primogeniture? Sahajveer, give the answer. When the king's elder son get rule after the king's death. Okay, it where is the called eldest son inherited the father's estate. जहाँ पे father के बाद किसको आगे rule करने को मिलेगा? The eldest son. Very good. Who is going to define copper-Senric? Copper-Senric. Definition of Manveer Singh Ahluwalia. Manveer Singh. Ma'am, the copper-Senric is a rule in which the king divides his rule in among his sons. All the sons. Amongst all the sons. ठीक है? Very good. It means whatever we have done, आप इसको अच्छे से रिकॉल कर सकते हो और प्लीज साइड बाय साइड रीडिंग करते रहो ताकि आपको ये चैप्टर कॉम्प्लिकेट ना लगे. फाइन. सो बेटा जब हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मुगल एम्पायर, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1526 जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई. बाबर ने यहाँ पे मुगल एम्पायर को सेटअप किया. तब से हम कहते हैं कि जो मुगल एम्पायर है वहां से स्टार्ट हुआ. एंड फ्रॉम दिस चैप्टर यू हैव टू डू वन एक्टिविटी आल्सो. अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा, देयर इज वन एक्टिविटी, टाइमलाइन एक्टिविटी. देखा है, पढ़ा है ना सिलेबस? सो फ्रॉम दैट यू हैव टू डू दैट. ठीक है, अब वो कैसे टाइमलाइन बनानी है, दैट आई विल लेट यू नो कि आप टाइमलाइन कैसे बनाओ. ठीक है, टाइमलाइन क्या होता है कि हमने उन इवेंट्स को मार्क करना है इन विच टाइम दे अकर. कैसे कैसे वो टाइम पीरियड में वो इवेंट्स आए हैं उनको हम लोकेट करेंगे. अगर हम सिंपल वे से करें, we start from here. You can draw the line horizontally, you can draw the line vertically. Or I already told you how to remember the names of
great Mughals in a sequence. आपको मैंने पहले भी बताया था भत्सा, उस सीक्वेंस में आप लर्न कर सकते हो इस चीज पे। तो अगर आप टाइमलाइन बनाओगे तो दैट इज योर होमवर्क एज वेल। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में बनाना है एंड यू हैव टू राइट डाउन योर सिलेबस एज वेल। तो इसके हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? बाबर से। बाबर का रूल कब से कब तक हुआ है? 1526 से 1530, मतलब जो मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 1526। ठीक है, तो एक साइड आप रूलर्स के नेम मेंशन कर दोगे और उसके अप साइड पे आप उसका आप जो टाइम स्पैन है, कितने टाइम पीरियड के लिए उसने रूल किया, वो मेंशन कर दोगे। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट इन योर बुक पेज नंबर 48 एंड 49। ठीक है, तो 1526 to 1530। Who was the next ruler? अब बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। ठीक है, अगर आप हुमायूं का टाइम पीरियड देखोगे, पहले 10 इयर्स इकट्ठे दे रखे हैं, फिर उसके बाद 15 इयर्स का गैप है। उस टाइम पे टू डायनेस्टी ने रूल किया है, देन ही रूल्ड फॉर 1 ईयर। सो द नेक्स्ट इज हुमायूं। तो इसकी आप टू टाइम पीरियड लिखोगे, 1530 से 1540, 1555 से 1556। तो who was the next ruler? इसके बाद कौन सा रूलर आया है? अकबर। The next one, अकबर। इसका रूल कब से कब तक था? 1556 से 1605। 1556 to 1605। तो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट रूलर वाज जहांगीर। इसका टाइम स्पैन कितना है? 1605 से 1627। Now the next ruler was Shahjahan. What was the time span? 1627 to 1658. And the last not the least, सबसे लास्ट औरंग, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, औरंगजेब के बाद भी मुगल एम्परर्स हुए हैं, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर ओनली स्टडिंग द अर्ली मुगल्स, ग्रेट मुगल्स। तो उसमें हम यहाँ पे सिर्फ औरंगजेब तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, द लास्ट वन वाज औरंगजेब। He ruled from 1658 to 1707. So in this way you are going to make a timeline in your notebook as well. Draw it neatly, अच्छे से बनानी है। मैंने horizontal way में बनाई है, you can draw in a vertical way also. आप इसे vertically भी बना सकते हो। Okay, you have to mention the name of the ruler and the time span जहाँ उसने rule किया, that you have to mention. Okay, so now we are going to continue with the topic. कल हमने पढ़ा था मुगल traditions of succession and we have also done Mughal relations with other rulers. अकबर के टाइम तक मुगल के रिलेशंस अदर रूलर्स के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। अगर उन्होंने किसी को हराया भी है, they didn't humiliate, किसी को इंसल्ट नहीं किया। But when we talk about Aurangzeb, he didn't maintain good relations with other rulers. मेन देखा जाए जो औरंगजेब था ना, वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था और इस्लाम को बहुत ही मतलब कट्टर रूप से मानने वाला था। जैसे अकबर था, अकबर ने हिंदुइज्म को भी बढ़ावा दिया, इस्लाम को भी बढ़ावा दिया। पर अगर हम औरंगजेब की बात करें, उसने हमेशा इस्लाम की ही साइड, तो इसलिए उसने दूसरे रूलर्स को, जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं की। ही ऑलवेज इंसल्टेड देम। और इसका एग्जांपल आता है शिवाजी। Anyone listen the story of Shivaji and Aurangzeb? आपने कभी स्टोरी सुनी है शिवाजी एंड औरंगजेब के बारे में? How Shivaji escaped from the Aurangzeb imprisonment. Just try to find out, try to ask from your parents. उनको पता होगा या कई बार आप मूवीज में देखते हो, तो वहां से आप इस स्टोरी को पढ़ना। And tomorrow I am going to ask. ठीक है? Okay? So
Today we are going to start with the topic Mansabdars and Jagirdars. Page number 51. So the next topic is Mansabdars and Jagirdars. बेटा जब हम ये टॉपिक करेंगे ना, प्लीज ट्राई टू रिलेट इट विद द प्रीवियस चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स. यहाँ पे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो हम दिल्ली सुल्तान में पढ़ चुके हैं, उसके साथ हम रिलेट भी करेंगे इस चीज को. ठीक है, सो बी अटेंटिव, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 51. नाउ मनसबदार एंड जागीरदार. मनसबदार अब ये क्या टर्म है? अब जो मुगल्स थे, बिकॉज इन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर सेटअप कर लिया था, काफी लार्ज एरिया को कवर कर लिया था, सो दे नीडेड ऑफिशियल्स. उनको कुछ लोगों की जरूरत थी ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन कर सके, अच्छे से चला सके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को. ठीक है, तो उसमें क्या था कि देखो कुछ एरिया इंडिया का भी था. ठीक है, अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी उन्होंने एरिया को कैप्चर किया. तो जब उन्होंने इस तरह से अपना एम्पायर सेटअप करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या रखा, अपने एम्पायर में टर्किश नोबल्स को अपॉइंट किया. बिकॉज अगर हम बात करें बाबर के टाइम से, तो समवेयर हाउ जो ये अर्ली जो मुगल्स थे, जो इनका स्टार्टिंग था वो वहां से टर्की, ईरान, इराक की तरफ से था. तो इन्होंने टर्किश नोबल्स को अपॉइंट किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. लेटर ऑन जैसे जैसे एम्पायर बढ़ता गया, दे आल्सो इंक्लूडेड इरानियंस, इंडियंस, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर. जैसे जैसे उन्होंने अपना एम्पायर बहुत वास्ट करते गए, तो टर्किश लोगों के अलावा उन्होंने इरानियंस को भी कहा कि इंक्लूड कर लिया, इंडियंस को भी किया, अफगान्स को भी किया, राजपूत, मराठास को भी इंक्लूड कर लिया. ठीक है, क्योंकि एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, उसको लुक आफ्टर करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, सो दे नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. That's why they appointed diverse body. Diverse मतलब अलग अलग एरिया. अगर आप यहाँ पे देखो, टर्किश भी हैं, इरानियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, अफगान्स भी हैं, so they appointed them. अब आता है क्वेश्चन, why? ऐसा क्यों किया कि उन्होंने अलग अलग जगह से लोगों को अपॉइंट किया? Why did they appoint? सबसे बड़ा फर्स्ट आंसर, they wanted to create a balance in administration. अब देखो, एक एरिया है जहां पे राजपूत रहते थे, उनको मुगल्स ने अपने अंडर लिया. अगर उनका जो ऑफिशियल है वो भी राजपूत होगा, तो उस एरिया को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों में से ही उनको चुना कि ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके. सेकंड, टू विन द ट्रस्ट ऑफ कॉमन पीपल. जो कॉमन पीपल हैं वो अपने ही लोगों को अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं. ठीक है, अपने काम करवा सकते हैं. दैट्स व्हाई जो मुगल्स थे, दे अपॉइंटेड, दे रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस बना रहे. और जब लोगों को लगेगा कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के एरिया से बिलोंग करते हैं, सो विद दैट दे वर एबल टू विन देयर ट्रस्ट. लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकेंगे. दैट्स व्हाई दे रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज. अब इसमें एक टर्म जो नेक्स्ट आती है कि जो भी इस मुगल सर्विसेज का पार्ट बन रहे थे, they were known as मनसबदार. अब जैसे इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम, हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज होती है. सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं. उसी तरह जो ये मुगल सर्विसेज में अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया, उनको क्या टर्म दी गई? मनसबदार. ठीक है, मनसबदार टर्म दी गई. जैसे अगर हम प्रेजेंट डे टाइम में देखें, अगर सिविल सर्विसेज की बात करें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं. उसी तरह जो मुगल सर्विसेज में लोगों को अपॉइंट किया गया, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर देम दैट वाज मनसबदार. ठीक है, अब हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज. ओके, नाउ मनसब का एक्चुअली मीन्स है रैंक. मनसब मीन्स रैंक, एंड द पर्सन who was holding that rank, that person was known as mansabdar. If you can just read, the term mansabdar refers to an individual who holds a mansab,
मनसब मीन्स पोजीशन, किसी भी पर्सन को जिस पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता था वो पोजीशन का क्या कहते थे उसको, मनसब। एंड द पर्सन हु वाज हैविंग दैट पोजीशन, दैट पर्सन वाज नोन एज मनसबदार। अब जो ये रैंक दिया जाता था, एक तरह से वो लोगों को ग्रेडिंग कर देते थे, मतलब उनका रैंक कितना होगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो दिस ग्रेडिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय द मुगल्स। ये मुगल्स क्यों यूज कर रहे थे, ताकि उसका रैंक फिक्स कर सके, उसकी सैलरी फिक्स कर सके और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सके। अब देखो बेटा, जिसकी जितनी ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट होगी उसकी सैलरी भी उतनी ज्यादा होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। So in the same way, in the Mughal administration, they started this mansabdari system. उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर रैंक दिया, दैट रैंक वाज नोन एज मनसब, और जो पर्सन उस रैंक को होल्ड कर रहा था दैट पर्सन वाज नोन एज मनसबदार। उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग, उसकी सैलरी। अब देखो बेटा, हमारे यहाँ पे भी जैसे ऑफिसेज हैं या जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितना ज्यादा आपकी हाई पोजीशन होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा होंगी, ठीक है, आपकी सैलरी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इट हेल्प देम आल्सो टू कैलकुलेट देयर रैंक, देयर सैलरी एंड देयर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एनी डाउट? तो रैंक एंड सैलरी ऑफ मनसबदार, किसी मनसबदार का क्या रैंक होगा, क्या सैलरी होगा, तो वो कैसे डिटरमिन करते थे, विद द हेल्प ऑफ जात। जात एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक तरह से एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसकी जितनी ज्यादा जात होगी उसकी पोजीशन उतनी ही ज्यादा होगी। अगर किसी मनसबदार की जात 5000 है और दूसरे मनसबदार की जात 1000 है, तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, किसकी सैलरी ज्यादा होगी, किसका रैंक सबसे बड़ा होगा, द वन हु वाज होल्डिंग द जात ऑफ 5000। 5000 एक तरह से हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, सिंपल एक एस्टिमेशन लिया कि जिसकी जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका पोजीशन, उसकी रैंक उतना ही हाई होगा, उसकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो जात वाज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्यों यूज किया गया, टू डिटरमाइन द रैंक एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार। मनसबदार को कितनी सैलरी देनी है, किस रैंक पे रखना है, फॉर दैट दे यूज दिस दैट। अब इसके साथ साथ जो मनसबदार थे उनकी कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसके लिए उनको सवार रखने पड़ते थे कैवेलरी में, मतलब फोर्समैन। उनके पास अपने हॉर्सेस होते थे, घुड़सवार होते थे, उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता था, और जो भी अगर वो न्यू हॉर्सेस को परचेज करते थे उनको भी रजिस्टर करवाना पड़ता। क्या ऐसा कुछ हमने दिल्ली सुल्तान में पढ़ा था? Did we study related to this in Delhi Sultan? कुछ ऐसा हमने मिलिट्री के रिगार्डिंग कुछ something we have studied in Delhi Sultan? Yes, Manya? मैम इक्ताज। Yes, इकद्दास, मुफ्तीज के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब हम टॉपिक को करेंगे we try to relate it with Delhi Sultans also. हमने वहां मुफ्तीज पढ़ा था, मुफ्तीज को भी लैंड दी जाती थी, वो भी मिलिट्री जो थे मिलिट्री फंक्शंस परफॉर्म किया करते थे। उसी तरह जो मनसबदार थे they were also having some military responsibilities, उसके लिए उनके पास आर्मी भी होती थी, सवार मतलब कैवेलरी मैन, हॉर्समैन भी होते थे, और अगर वो न्यू फोर्सेस परचेज करते थे तो उसको रजिस्टर भी करवाया करता, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा जात होगी, जितना जात होगी उसका रैंक उतना ही बड़ा होगा और उसकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी। जात क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर किसी की जात 200 है, किसी दूसरे मनसबदार की जात 500 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, जिसकी जात 500, ठीक है। सो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू वाज यूज्ड एट दैट, ठीक है। तो एज वी स्टडीड इन दिल्ली सुल्तान्स, जो वहां पे मुफ्तीज होते थे, they were given इक्ताज as their revenue assignment, उनको इक्ताज दी जाती थी, लैंड पोर्शन दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या है, मनसबदार, मनसबदार जाते तो उनको रेवेन्यू असाइनमेंट में क्या दे रहे थे, जो मुगल एम्परर्स थे they were giving them जागीर। दिल्ली सुल्तान्स में क्या दिया था, इक्ताज, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, they were given जागीर,
जागीर किस बेसिस पे? एज रेवेन्यू असाइनमेंट, जहां से वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे एंड दैट रेवेन्यू वाज यूज्ड एज देयर सैलरीज। ठीक है, मनसबदार को एक एरिया दे दिया गया, एक पीस ऑफ लैंड दे दिया गया, दैट वाज नोन एज जागीर, दैट जागीर वाज देयर रेवेन्यू असाइनमेंट, वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे एंड दैट रेवेन्यू वाज यूज्ड एज देयर सैलरीज, वो उसे अपनी सैलरीज भी के लिए भी यूज करेंगे और जो उनके सोल्जर्स हैं, जो उनके पास आर्मी है, उनको भी वहीं से फीड करेंगे। ठीक है, तो एम्परर जो अलग से पैसे नहीं भेजेगा, एम्परर ने उनको एक हिस्सा दे दिया, जागीर दे दी, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करो, अपनी आर्मी को भी उसी से फीड करो और अपनी सैलरी भी उसी में से निकालो। ठीक है, तो अब जब हमने दिल्ली सुल्तान में इक्तास के बारे में पढ़ा था, वहां हमने ये पढ़ा कि जो इक्तास थे वो ट्रांसफरेबल थे, परमानेंट नहीं थे, पर जो इक्तदार था वो उस एरिया में रहता था। बट इन मनसबदारी सिस्टम these jagirs were given to the mansabdar as revenue assignments, but they didn't reside here, वो यहाँ रहते नहीं थे। ठीक है, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, उस टाइम पे रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता? अगर मनसबदार अपने जागीर में नहीं रह रहे थे तो who were collecting the amount, who were collecting the revenue? For that they were having servants, और वो सर्वेंट थे जागीरदार। उन्होंने अपने सर्वेंट्स को अपॉइंट किया कि आप हमारे एरिया में हमारे बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, तो दैट सर्वेंट्स वर जागीरदार। वो रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देंगे? मनसबदार को। मनसबदार वो रेवेन्यू अपनी सैलरी के लिए भी यूज करेगा, सोल्जर्स को पे करने के लिए भी यूज करेगा, और साथ में वो रेवेन्यू का कुछ हिस्सा एम्परर को भी देगा। ठीक है, अब दिस वाज अबाउट द मनसबदारी एंड जागीरदारी। अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम बहुत अच्छे से हुआ, उन्होंने अच्छे से जागीर को कैलकुलेट किया, अच्छे से सब कुछ किया। हर एक जागीर, हर एक मनसबदार के पास अपने सैलरी के अकॉर्डिंग जागीर थी। अब बेटा देखो, जागीर देना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क। अब किसी का रैंक 5000 है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा है, तो उसकी सैलरी, मान लो अगर किसी पर्सन की सैलरी के अकॉर्डिंग उसको रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा, तो वो क्या करेगा? वो और ज्यादा रेवेन्यू इम्पोज कर देगा। तो अकबर के टाइम पे जो ये मनसबदारी सिस्टम था बहुत अच्छे से असेस, जितने मनसबदार उतनी जागीर दी गई, और जिस मनसबदार की जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी सैलरी थी, उसके अकॉर्डिंग जागीर। बट इट वाज नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। देयर वाज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, मनसबदार बढ़ गए, जागीर उतनी की उतनी रह गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मनसबदार थे वो हर बार क्या करते थे, जिसको वो जागीर मिलती थी उतना ज्यादा टैक्स लगा। एवरीवन ट्राइड टू कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्स, जब जिसकी टर्न आई उसने और ज्यादा टैक्स लगा। तो एट दैट टाइम जो पीजेंट्स थे, जो पेजेंट्स थे, दैट वर नॉट हैप्पी। किसके रेन में? औरंगजेब के रेन। When we talk about Akbar's reign, Mansabdari system was well versed, well calculated. But when we talk about Aurangzeb reign, वहां पे क्या था? मनसबदार का नंबर इंक्रीज हो गया, जागीर का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर देयर टर्न कि हमें कब जागीर मिले, कब हम उससे रेवेन्यू कलेक्ट करें, कब हमें सैलरीज मिलेंगी, और सबने मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू लगाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट पड़ा? पेजेंट्स पे, किसानों पे। और क्या होगा जब आप किसी को अननेसेसरी ऐसे तंग करोगे? वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट ऑन पेज नंबर 52 अगर आप इसमें भी देखो कि जो ये औरंगजेब के टाइम पे था, तो जो जागीरदारी सिस्टम था, दैट वाज नॉट फ्लरिश्ड प्रॉपर्ली। ओके, सो इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट।